Good afternoon everyone. Let us start with today's class. आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे that is nature, objectives and scope of audit. Formally this is the first chapter as per your ICAI study material. तो हमने last two classes में जो भी किया that was an introduction to audit and some basic terms which I believe you should know and understand before we move into the actual syllabus of your audit. So now before starting this chapter we will revise a few concepts from the last two classes. सारे नहीं, मैं randomly कुछ questions आपसे पूछूंगी and you have to reply. आप घर बैठ के पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंसर नहीं करोगे, मैम एकदम आपको देख रही है. सो आपके घर पे भी जो आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स, अगर आप पीजी में रह रहे हो, सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जोरों शोरों से ना ऑडिट की पढ़ाई चल रही है एकदम. आपके आसपास के फ्रेंड्स भी मोटिवेट हो जाने चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है. तो इसी तरह से आपको मेरे साथ बोलना है, यू हैव टू रीइटरेट विथ मी सो दैट कि आपके जो ब्रेन में है, आपके माइंड में सारा कुछ कॉन्सेप्ट सीप इन हो जाए, एकदम अंदर तक बैठ जाए और आपका मेमोराइजिंग का जो प्रोसेस है वो भी इससे इजी हो जाएगा. राइट, ओके. सो लेट अस स्टार्ट. आप मुझे बताओ मैनेजमेंट असर्शंस क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय असर्शंस? Assertions, ma'am, are certain representations made by the management in the financial statement items, and they are evaluated by the auditor to consider potential misstatements. For example, rights obligations हो गया, accuracy हो गया, valuation हो गया, existence assertion हो गया. ठीक है, ये assertion auditor evaluate करते हैं to identify potential misstatements. Now, what do you mean by misstatements? Misstatements, ma'am, is the difference between the required ACPD, amounts, classification, presentation and disclosure, and the reported ACPD. That means what is required by the actual applicable financial reporting framework and what has actually been reported. So required or reported के बीच का difference. Misstatements may arise either due to fraud or due to error. Okay, now tell me, what do you mean by internal control? Ma'am, internal control is a set of policies and procedures which is designed by whom? It is designed by the auditor or the management? It is designed by the management. Designed, implemented and maintained by two persons, management and TCWG, those charged with governance. Now why is it required? It is required to obtain reasonable assurance about four things. पहला वाला क्या? Achievement of entity's objective. दूसरा वाला operational efficiency and effectiveness. Third is safeguarding of assets. Fourth is compliance with laws and regulations. So to obtain reasonable assurance about these four things, the management designs, maintains and implements the internal control system. इसमें हमने example लिया था internal control system of the sales process. ठीक है. Now what is reasonable assurance? Reasonable assurance, ma'am, is a very high level of assurance but not an absolute level of assurance. It is very close to 100% but not 100%. इसको कहते हैं हम रीजनेबल अश्योरेंस. मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस में एग्जेम्पशन आएगा, इवन इफ यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट, आप बहुत अच्छा लिखते भी हो, आप अच्छे से सारा कुछ लर्न भी कर लियो, तो भी आप मुझे गारंटी नहीं दे पाओगे. यू विल बी एबल टू प्रोवाइड मी अ रीजनेबल अश्योरेंस कि हाँ मैम आ सकता है. ठीक है, ओके. अभी मुझे आप बताओ इंडिपेंडेंस क्या होता है? व्हाट इज ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस? Auditor is independent. It implies that the auditor's opinion will not be subordinate to the wishes or commands of the appointing authority. That means auditor will safeguard himself from the outside influences when issuing an audit opinion. Now there are two concepts of independence. One is independence of mind, second is independence in appearance. These two are interlinked concepts. मतलब independence should not just exist in fact, it should also exist in appearance. That means a third party having reasonable amount of knowledge should not believe that your objectivity has been compromised. He should believe that you have been independent in performing your audit engagement. Right? So these were the few concepts. कुछ कॉन्सेप्ट्स जो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़े थे. अभी अपने शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. So you can see that we have a road map at the start of the chapter जिसमें सारी topics जो इस chapter में अपने cover करेंगे वो listed हैं. So now let us start with the first topic, that is your meaning of audit. We have already done this in the last chapter और मैंने revise भी आपको काफी बार कराया. तो एक last बार अपने बोलेंगे what is audit guys. Audit ये definition कौन से standard में दिया है, पहले तो ये बताओ मुझे कौन से essay में ये definition दिया है? As per SA 200. So write down as per SA 200.
So what is our audit as per SA 200? It is an independent examination of financial information of which kind of entity? Of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its legal form or size, when such an examination is done with a view to express an opinion thereon. तो टोटल कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैम इसमें? इसमें टोटल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला क्या? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. दूसरा क्या? एग्जामिनेशन किस चीज की? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की. कैसी एंटिटी की? एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज फॉर्म, कैसी भी एंटिटी हो. एंड लास्टली, क्यों करते हैं ये एग्जामिनेशन? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. सो हाउ मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर? देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर लिया है. All the points are marked in orange. You can just note कि 5 points are there. Okay, 5 points जो आपको याद रखने हैं in the definition of auditing. मैम क्या एग्जाम में आएगा what is audit? You never know. कभी भी आ सकता है, MCQs में आ सकता है, या फिर आपके करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं. इसलिए जब हम पहले ही दिन डिस्कस कर लेते हैं ना पेपर पैटर्न क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में किसी भी टॉपिक के प्रति ना वो नहीं आते कि ये इतना छोटा सा टॉपिक है, कौन पूछेगा एग्जाम में. आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी भी पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू लर्न इट. ओके, सो पहला टॉपिक हो गया हमारा व्हाट इज ऑडिट. नेक्स्ट टॉपिक इज SA 200. व्हाट इज SA? SA मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. ओके, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन योर सिलेबस, राइट. तो ये पहला स्टैंडर्ड है जो हम आज शुरू करने वाले हैं, दैट इज SA 200. नाउ एक बार मैं आपको लिस्ट ऑफ एसेज दिखाऊंगी. आपकी जो बुक के स्टार्टिंग में मैंने एक लिस्ट ऑफ एसेज डाल के रखी है, उसमें आ जाइए. We have a list of abbreviations, then we have a list of SAs, standards on auditing, which are applicable for your intermediate syllabus. You can see there are a lot of standards और कुछ grouping की हुई है यहाँ पे. If you can see, पहला वाला quality control है, दूसरा वाला जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स है. SA 200 है, 210 है, 220 है, 230 है, 240 है. देन एक नया ग्रुपिंग आ गया, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क. तो पहले तो समझते हैं व्हाट आर दीज स्टैंडर्ड्स. व्हाट डू यू मीन बाय SAs और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? SAs, guys, are nothing but it is a codification of the best practices of auditing. ऑडिट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको लेके एक स्टैंडर्ड बनाया गया. जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, दे एक्ट एज अ गाइड फॉर द ऑडिटर, राइट. दे एक्ट एज अ बेंचमार्क फॉर द ऑडिटर कि ऑडिटर की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए एज गिवन इन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इफ यू हैव कंफ्यूजन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर आइटम की इसकी ऑडिट हम कैसे करें, आइटम एज इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट, सो यू कैन रेफर टू द स्टैंडर्ड रिलेटेड टू इट इफ देयर इज एनी. सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. बिकॉज ऑडिटर्स कौन होते हैं जनरली? कंपनी ऑडिटर्स कौन होते हैं? हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो द स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ICAI स्टैंडर्ड्स बनाती है. किस लिए बनाती है? ताकि ऑडिटिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको हम एक जगह एनलिस्ट कर सकें, जिसके तहत ऑडिटर्स अपना काम को कर सकें. ठीक है, अब ये जो ग्रुपिंग है ये क्या चीज की है? हर एक ग्रुप एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑडिट को एड्रेस करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर की जनरल प्रिंसिपल्स, उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए इन एन ऑडिट, एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें जो है वो हमारे SA 200 सीरीज में दी गई है. 200 नहीं बोला, SA 200 सीरीज बोला. 200 की जो एंटायर सीरीज है, जो पूरी लिस्ट है, इसमें आपको इंट्रोडक्टरी मैटर्स मिलेंगे, राइट. देन 300 सीरीज जो है वो रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करते हैं. 500 सीरीज जो है वो ऑडिट एविडेंस के बारे में इन डिटेल बात करते हैं. अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें बात होती है कि कैसे आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, व्हाट ऑल कैन बी कंस्ट्रूड एज ऑडिट एविडेंस. सो ऐसे 500 सीरीज उसके बारे में बात करती है. 600 सीरीज इज रिगार्डिंग यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स. दूसरे लोगों के काम को ऑडिटर कैसे यूज कर सकता है, किसी एक्सपर्ट के काम को या किसी दूसरे ऑडिटर के काम को एक कंपनी ऑडिटर किस तरह से यूज कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज, आप उतना डिटेल में मत जाओ. द पॉइंट इज ओनली दिस, दैट ईच सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स इज hitting, or you can say addressing, a particular area of audit. I just want you to write something over here. कुछ हम लोग standards के बारे में लिखेंगे. Standards क्या होते हैं? Standards, you can just write standards
देखो बच्चों, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं होते हैं. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर द is the codification of the best practices of audit. They act as a benchmark for the performance of auditors. मैम क्या ये स्टैंडर्ड्स हर ऑडिटर को कंप्लाई करना जरूरी है, क्या मैंडेटरी है? यस, दीज आर मैंडेटरी इन नेचर. एवरी ऑडिटर हैज टू कंप्लाई विथ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. मैम ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आपके कंपनीज एक्ट में. व्हेन वी विल स्टडी कंपनीज एक्ट, देयर आई विल शो यू सेक्शन नंबर 143 बोलता है कि every company auditor has to comply with all the relevant auditing standards. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक बेसिक डिस्कशन. व्हाट आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. डिटेल में स्टैंडर्ड्स कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, उनका कैसा उनका कंस्ट्रक्शन होता है, दिस वील स्टडी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ लेट अस कम टू आवर essay 200 जो हम लोग पढ़ रहे थे. उसका एक बार टाइटल यहाँ पे देखेंगे. essay 200 का टाइटल क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. So काफी लंबा है स्टैंडर्ड का नाम, but you have to remember the title of the standard. We'll write in our chapter essay 200 जहां हम पढ़ रहे थे. Let's come to that. essay 200 यहाँ पे एक बार आके essay का नाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Write the name of the standard, the title, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. नोट डाउन कर लीजिए इसको. डन. ओके, सो यू कैन सी दैट इस टाइटल के दो पार्ट्स हैं. One is overall objectives of the independent auditor, एक पार्ट हो गया, and second part is conduct of an audit in accordance with standards on auditing. तो मेन ये जो स्टैंडर्ड है, दो चीजों के बारे में बात करते हैं. पहला हो गया overall objectives of the independent auditor, दूसरा हो गया conduct of audit in accordance with the standards on auditing. So let us come to the first part. पहले overall objectives of an auditor. overall objectives मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया गोल ऑफ द ऑडिटर. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स मतलब पूरी ऑडिट कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑडिट कर क्यों रहे हो आप एज एन ऑडिटर? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस ऑडिट? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस ऑडिट आर टू. मैंने आपको पहले बताया था ना फर्स्ट क्लास के अंदर, प्रोसेस ऑफ ऑडिट में एंड वाई ऑडिट के अंदर ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया गया था. आईटीसी लिमिटेड के मेंबर्स ने, स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स ने क्यों अपॉइंट किया था ऑडिटर को? ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे सके दो चीजों के ऊपर, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स और नॉट. रिमेंबर दिस? याद है ना आपको? मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था ये चीज. यस मैम, याद है हमें. So overall objectives of an auditor as per essay 200 दो हैं. पहला हो गया that the auditor has to obtain a reasonable assurance about two things, about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements and thereby showing a true and fair view of the state of affairs of the entity and the results of the entity. मतलब material misstatements से क्या financial statements मुक्त हैं? क्या वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू किन दो चीजों की होती है गाइस? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ पीएल. सो ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ?
that the auditor has to obtain a reasonable assurance about whether financial statements as a whole मतलब क्या हुआ, as a whole मतलब financial statements के सारे items मिला के, सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई सारे एलिमेंट्स है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड पेएबल्स है, परचेज, सेल, वी हैव इन्वेंटरीज, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, कितना कुछ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हर एक आइटम के ऊपर ऑडिटर अपनी ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करते हैं। इन एग्रीगेट सारे आइटम्स को मिला के क्या वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एज अ होल। So financial statements as a whole are free from material misstatements and whether they show a true and fair view of the state of affairs and the results of the entity or not. ये क्या हो गया, ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। Second objective is that the auditor is required to communicate as required by the standards on auditing. So मैंने अभी जो आपको list of essays दिखाई ना, हर एक स्टैंडर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट द ऑडिटर शैल डू दिस, द ऑडिटर शैल डू दिस, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ये चीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी ऑडिटर को, ऐसे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो द ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज दैट ही शुड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय ऑल द गिवन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑन ऑडिटिंग व्हिच आर रिलेटेड टू, व्हिच आर रेलेवेंट टू हिज ऑडिट। Clear? So the objective of auditor is to communicate as required by the standards on auditing and to issue an appropriate report on the financial statements. So second objective क्या हो गया? To communicate as required by the essays and to report on the financial statements. So ये चार पार्ट में मैंने डिवाइड किया, बट एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला हो गया रीजनेबल अश्योरेंस कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, दूसरा हो गया कि आपको एज एसेज ने बोला है आपको कम्युनिकेट करना है एंड यू हैव टू इशू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट ऑन द एफएस। क्लियर? यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वंस, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। एक बार रीड करेंगे इसको अपने, मैंने तो आपको समझा दिया, आपको एक बार रीड करना है, जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस। ठीक है, दिस पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड इज 1 पॉइंट, ऑन द राइट साइड इज 1 पॉइंट। ओके okay, so the next part of the title of the standard is conduct of an audit in accordance with standards on auditing. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ने अराउंड टोटल में 46 एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशू करके रखे हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में 27 स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो भी सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नॉट अदर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सो दिस ऐसे 200 शुरुआत में ही बता दिया इसने कि जो 46 के 46 स्टैंडर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि एक ऑडिटर को सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करना पड़ेगा। You have to conduct your audit in accordance with the standards on auditing, but this doesn't mean कि आपको सारे के सारे ही स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। सो इसमें पहला पार्ट क्या है, दैट एक जितने भी स्टैंडर्ड्स इशू किए हुए हैं ICAI ने, उसमें से सिर्फ आप वो स्टैंडर्ड्स पिक करो, यू जस्ट पिक दो स्टैंडर्ड्स व्हिच अप्लाई टू योर ऑडिट। देयर मे बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो आपकी ऑडिट में अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ऐसे 610 है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। नाउ से कोई कंपनी ऐसी है जिसमें इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है, there is no internal audit department only, so will SA 610 at all apply to your audit? No, it will not apply. So the SA 200 says that you have to only comply with the essays relevant to your audit. रेलेवेंट टू योर ऑडिट मतलब जो सर्कमस्टांस उस ऐसे में एड्रेस की गई है, जैसे ऐसे 610 में क्या एड्रेस किया गया कि ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को किस तरह से यूज करेगा, ये circumstance is addressed by SA 610. Now this circumstance doesn't exist only in your audit. How will you use SA 610? So you have to conduct your audit in accordance with essays, but comply only with those essays which are relevant to your audit. ओके, सेकेंड पॉइंट ऐसे 200 ने अच्छा बोला कि हर एक स्टैंडर्ड के अंदर कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हो सकता है कि आपके केस में उस स्टैंडर्ड की सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 एंड 3 अप्लाई करती है, 4 एंड 5 नहीं अप्लाई करती है।
अगर 5 रिक्वायरमेंट है, से फॉर एग्जांपल किसी स्टैंडर्ड की 5 रिक्वायरमेंट्स हैं या कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके केस में सिर्फ वो 3 ही रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करती है, 2 नहीं करती है, so you only comply with those requirements of the standard which are relevant to your audit. requirement of standard मतलब क्या? स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ऑडिटर शैल डू दिस, ऑडिटर शैल डू दिस, ठीक है, तो आप सिर्फ उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करिए जो आपकी एंगेजमेंट में, आपकी ऑडिट एंगेजमेंट के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे 501 है, ठीक है। ऐसे 501 3 स्पेशल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया इन्वेंट्रीज, दूसरा हो गया लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, मतलब अगर आपका कोई कोर्ट में कुछ केस वगैरह चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसको कहते हैं लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। एंड थर्ड वन इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब ऐसे 501 पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ आप ये समझो कि ऐसे 501 में 3 चीजों के बारे में बात होती है। अब मैं जिस कंपनी की ऑडिट कर रही हूँ वहां पे ना लिटिगेशंस एंड क्लेम्स है, ना ही सेगमेंट इंफॉर्मेशन है, तो क्या ऐसे 501 के ये 2 रिक्वायरमेंट्स, ये वाले 2 रिक्वायरमेंट्स क्या मेरे काम के हैं? नहीं है, बिकॉज दैट सर्कमस्टांस, दैट सिचुएशन इज नॉट ओनली एग्जिस्टिंग इन माई कंपनी, इन माई क्लाइंट एंटिटी। सो ऐसे 200 says that you comply only with the relevant requirement of these standards. Now the third thing which is written in this conduct of an audit in accordance with essays is, आपने कह दिया ऐसे 200 है that you have to conduct your audit standards के हिसाब से। अब मैं एक ऑडिटर हूं, मैंने कहा कि मैंने स्टैंडर्ड के सारे रिक्वायरमेंट्स को, सारे स्टैंडर्ड्स जो भी रेलेवेंट है मेरे लिए, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स मेरे लिए रेलेवेंट है, उसके हिसाब से मैंने अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स which the auditor performs in order to obtain audit evidence, जिसके ऊपर उसकी कंक्लूजन बेस्ड होती है, राइट? तो मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर सारे परफॉर्म कर लिए एज पर एसेज, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि क्या इन स्टैंडर्ड्स के बाहर भी कोई ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो मुझे अप्लाई करने चाहिए। So SA 200 says that the auditor should also determine whether any audit procedures in addition to those given in the standards on auditing should be performed or not. That means the auditor should use their professional judgment to decide, to determine कि कोई additional audit procedures भी हमें perform करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। मतलब ब्लाइंडली आप ये नहीं कह सकते हो मैंने ऐसे के हिसाब से ऑडिट कर ली। आप अपनी दिमाग लगाओ, आप अपना बुद्धि लगाओ, अप्लाई करो कि क्या कोई एडिशनल चीज भी है जो आपको परफॉर्म करनी है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गिवन इन एसे 200। फोर्थ थिंग विच इज गिवन इज, आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से अपनी ऑडिट परफॉर्म करनी है। सो हर एक स्टैंडर्ड का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने तो कह दिया कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ जब मैं आपको स्टैंडर्ड का फ्रेमवर्क बताऊंगी, कैसे स्टैंडर्ड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो वहां मैं आपको बताऊंगी हर एक स्टैंडर्ड का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सपोज ऐसे 210 का एक ऑब्जेक्टिव स्टेटेड है। नाउ ऑडिटर को ऐसे 200 के ऑब्जेक्टिव को पहले फुलफिल करना है, और वो ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा, 220 का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा, 230 का करेगा, 40 का करेगा, व्हाटएवर इज रेलेवेंट टू देयर ऑडिट, उन सारे के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। क्यों? ताकि वो अपने ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ऊपर में हम 2 पढ़ के आए अभी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एंड देयरबाय प्रेजेंटिंग अ true and fair view of the financial statement. Second one is to communicate as required by the SAs and to issue an appropriate audit report. तो सारे जो मिनी गोल्स है ना, आप समझ सकते हो कि इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मिनी गोल्स हो गए। इन मिनी गोल्स को हम अचीव करेंगे टू अचीव द बिगर गोल। जैसे आप अगर अपना एग्जांपल लें, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि आप इंटरमीडिएट लेवल जो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो आप क्लियर कर सको। तो पहले आप मिनी गोल्स को अचीव करते हैं टू अचीव द बिगर गोल। ये भी ऐसे 200 में मेंशन्ड है। यहाँ पे हम वो 2 एग्जांपल्स लिखेंगे जो मैंने दिए थे आपको। ऐसे 610 का एग्जांपल यहाँ नोट करेंगे। कंप्लायंस विद एसेज रेलेवेंट टू ऑडिट एग्जांपल, you have to write this with me. Example SA 610 will apply only if the company has an internal
audit department or internal auditors. So it will apply only and only if the company is having an internal audit department or an internal auditor. And दूसरा वाला जो था कि relevant requirements से सब comply करना है. Example, SA 501 addresses 3 FS items, or you can say addresses 3 issues. Auditor has to comply only with those requirements which apply to their audit. SA 501 addresses 3 issues, but auditor has to comply only with those requirements which apply to their audit. बाकी दोनों के लिए एग्जाम्पल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन ईच ऐसे के पास में मिनी गोल्स टू अचीव द बिगर गोल. ये सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए और समझने के लिए, बट लैंग्वेज इफ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू यूज दिस ओनली, द टेक्निकल वन. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट. आप ये चीजें नोट कर लीजिए एक बार. आई एम गिविंग यू 1 minute टू राइट. ठीक है, डन. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आके ऊपर नोट करेंगे, इसी पेज में ऊपर आके एक चीज नोट करेंगे. SA 200 primarily covers the following. SA 200 में किस किस चीज के बारे में बात होती है ये हम लिख लेते हैं एक बार. पहला तो हो गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमने अभी अभी इस चैप्टर में पढ़ा. दूसरा हो गया आपका conduct of an audit in accordance with SAs. ठीक है, जो हमने पढ़ लिया. तीसरा हो गया कुछ ethical requirements, जो हम लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखो, ऐसा जरूरी नहीं है मैंने पूरा SA 200 यहीं पे इंक्लूड किया है. SA 200 को मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर करके कहा, जहां रिक्वायर्ड था, जिस टॉपिक के साथ रिक्वायर्ड है मैंने उसको वहां पे इनकॉर्पोरेट किया. सो फोर्थ थिंग जो SA 200 में है दैट इज प्रोफेशनल जजमेंट. क्या होती है ये हमने पढ़ लिया क्या? हाँ मैम, ये तो हम पढ़ के आए लास्ट चैप्टर में. सो इसके बगल में आप लिख लेंगे प्रोफेशनल जजमेंट के पास आप लिखेंगे इन चैप्टर 1. नेक्स्ट बात करते हैं SA 200 रिगार्डिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. क्या हमने ये भी पढ़ लिया? यस मैम, ये भी हम पढ़ के आए चैप्टर 1 में, इन चैप्टर 1. 6th जो है SA 200 बात करता है रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क. ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में कुछ किया था, बट इसको डिटेल में हम लोग लेटर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कस्ड लेटर. सी SA 200 एक इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो बाकी बाद के स्टैंडर्ड्स में भी रिपीट हुई है. सो आई डिडंट वांट कि आपको भी मैं रिपीटेड स्टडी कराऊं, इसलिए हम उस चीज को जो है बाद के चैप्टर में ही कवर करेंगे. सो these are primarily the things which have been covered in SA 200. overall objectives हो गया, conduct of audit in accordance with SAs हो गया, ethical requirements हो गई, professional judgment, professional skepticism, audit evidence and audit risk. ठीक है, इसके अलावा और कुछ और एक पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ है, आप लिख सकते हैं. रादर 2 पॉइंट्स और हैं. वन इज inherent limitations of ऑडिट, जो कि हम इस चैप्टर में करेंगे बट लेटर करेंगे, अभी नहीं.
एंड नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ ऑडिट, जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो टोटल ये 8 चीज ही ऐसे 200 प्राइमरीली एड्रेस करते हैं जिसको हमने अलग अलग जगह पे पढ़ा है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं इसको। आई जस्ट गिव यू 1 more minute टू राइट। सारे स्टैंडर्ड्स को हमने ऐसे नहीं किया है कि मैंने ब्रेक कर करके अलग अलग जगह पे इनकॉर्पोरेट किया। मोस्टली आपको सब कुछ एक जगह ही मिल जाएगा, बट ऐसे 200 सिंस इंट्रोडक्टरी स्टैंडर्ड है तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पहले आपको बतानी थी पहली क्लास में। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम डिटेल में आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया, बट जो डिस्क्रीट टॉपिक्स है उसको मैंने इधर ही इंक्लूड कर दिया। ठीक है, देखिए ये डिफरेंस होता है आप जब खुद से पढ़ते हैं और जब आप क्लास लेके पढ़ते हैं तो आपको इजी तरीके से जैसे पढ़ाई हो सके उस तरह से पढ़ाया जाता है ना। चलिए, आई बिलीव आपने इसको लिख लिया। चलो 30 more seconds टू गो। मैम टाइमर क्यों लगा देते हैं आप? टाइमर लगाना पड़ता है बच्चों, क्लास को टाइमली चलाने के लिए टाइमर को लगाना पड़ता है। फटाफट लिखिए, हाथ चलाइए फटाफट। लास्ट वाला जो है ना स्कोप ऑफ ऑडिट लिखा है मैंने, 8 नंबर पॉइंट है स्कोप ऑफ ऑडिट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्कोप ऑफ ऑडिट ही हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आई बिलीव हो गया आपका, आपने लिख लिया। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज आवर स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके ओके, तो अब अपनी बात करेंगे अबाउट एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, दैट इज इन डिटेल ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर, जैसे मैं शुरू क्लास से फर्स्ट क्लास से आपको बोलते आ रही हूँ, ऑडिटर हैज टू कंपेयर द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स are prepared on the basis of underlying records. So those underlying records have to be compared with the financial statements, or you can say the financial statements have to be compared with the underlying accounting records. ये पहला एस्पेक्ट हो गया। अब जाते हैं डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट हो गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जिसमें अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं, पीएल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना। क्या बोल रहे हो मैम? पीएल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं क्या चीज, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, दैट इज ऑडिट के लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या कहेंगे, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। नाउ द ऑडिटर हैज टू वेरीफाई कि ये जो ट्रांजैक्शंस पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड हुए हैं क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये जेन्युइन है, या फिर फेक या फिक्टिशियस एंट्रीज को रिकॉर्ड किया गया है। ऑडिटर हैज टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए वैलिड थी। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है कि डायरेक्टर जो है वो स्विट्जरलैंड घूम के आया अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। Is this transaction valid to be recorded in the books of accounts of the entity? This is a personal expenditure of the director. Had it been for business purpose, we would have accepted it. But this is not valid क्योंकि ये personal purpose का खर्चा था जो कि आपने books of accounts में record कर लिया. So the auditor has to verify what? The authenticity यानी कि genuinity कि कोई fake entries नहीं होनी चाहिए, and also the validity of all the transactions. ये हो गया statement of PL. बैलेंस शीट में अपने क्या रिकॉर्ड करते हैं मैम, बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं, इस बार हमें उल्लू मत बनाना, बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज। वी रिकॉर्ड द अकाउंट बैलेंसेस इन द बैलेंस शीट। सो द ऑडिटर, असेट्स के लिए ऑडिटर को क्या चेक करना है, ऑडिटर को चेक करना है द टाइटल deeds, is it in the name of the company or not. The auditor has to check the existence of the asset. Remember assertions का हमने जो बिल्डिंग का 1 करोड़ का एग्जांपल लिया था, ऑडिटर हैज टू चेक कि बिल्डिंग एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं, इज इट इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट। ऑडिटर विल आल्सो चेक द वैल्यूएशन, 1 करोड़ की है कि 10 करोड़ की है या फिर 50 लाख की है ना। उसके बाद ऑडिटर लायबिलिटीज के लिए क्या चेक करेगा, इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटीज, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। सो ऑडिटर विल वेरीफाई ऑल द लायबिलिटीज। ये हो गया अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट। तो 4 पॉइंट्स क्या थे, सबसे पहले कंपैरिजन, यू हैव टू से विथ मी, आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा, कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन of the authenticity and validity of transactions, then title, existence and valuation of assets इसको verify करना, and verification of all the liabilities.
Then the auditor will check the internal control system. Then the auditor will evaluate the internal control system. Remember we did in the last chapter, in the last class, ki internal control system कौन बनाते हैं? Internal control system is designed, implemented and maintained by the management and TCWG, and the auditor will evaluate that system of internal control to identify कि controls properly in place है या नहीं है. Because अगर controls proper नहीं होंगे, controls will be weak, there will be higher chances of misstatements, there can be higher chances of errors and frauds in the financials. Auditor will check the accounting and internal control system. Then finally the auditor will check the results as shown by the statement of PL, यानी कि अगर profit है या loss है PL account में, तो auditor will check whether this profit or loss has been correctly arrived at, all the accounting standards or Ind AS, अगर Ind AS apply करते हैं, has been followed and उसके हिसाब से profit has been computed or not. And finally auditor का काम क्या होता है, जैसे हमने वाई ऑडिट के अंदर पढ़ा था, आईटीसी members ने ऑडिटर को क्यों अपॉइंट किया था, टू इशू अ रिपोर्ट. So the auditor will issue a report to the appropriate authority. Appropriate authority कौन हुई, जैसे ITC Limited के केस में who had appointed the auditor? Auditor was appointed by the members of ITC Limited, यानी कि the shareholders. So report किसको जाएगी? Report will be issued to the shareholders, the members, will be addressed to the members. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है रिपोर्ट इशू की जाए. ठीक है. सो ये डिपेंड करता है कौन सी रेगुलेशन अप्लाई करती है, कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है रिपोर्ट इशू. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया हमारा एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. ये तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप ही मुझे बताओगे ऑडिट कराने के क्या एडवांटेजेस हैं. इमेजिन अ कंपनी और एन एंटिटी, कंपनी तो हो नहीं सकती क्योंकि कंपनी के ऊपर तो ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है. इमेजिन एक ऐसी एंटिटी है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ले लो, जो ऑडिट नहीं कराते हैं, और एक कंपनी है जो ऑडिट कराती है. तो जो ऑडिट करा रहा है उसको क्या एडवांटेज मिलेगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिटी एंटिटी का ऑडिट हुआ होगा. सबसे पहले तो आईटीसी लिमिटेड की ऑडिट क्यों हो रही थी उसमें आते हैं. हम बार बार आईटीसी लिमिटेड कहते हैं. हाँ देखो, फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेस बनाने के लिए. तो मैंने क्या कहा था कि मैनेजमेंट और ओनरशिप में डाइवर्जन हो गया. मैनेजमेंट कंपनी की कौन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओनर्स कौन है कंपनी के, जिन्होंने पैसा लगाया, यानी कि हम जैसे लोग शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट मैनेजमेंट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. So there's a difference, there's a diversion between, or a divide you can say, between the ownership and the management. अब owners जो है उनका financial interest है ना कंपनी में, but they are not a part of the management. So audit क्या करता है, it safeguards the financial interest of people who are not associated with the management. जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, आपके वेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स हो गए. तो ये सारे लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, एंटिटी में इंटरेस्टेड है, बट आर नॉट इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट. सो द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ दीज पीपल इज प्रोटेक्टेड और सेफगार्डेड अगर ऑडिट हो जाए. ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन करते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है फाइनेंशियल पे कि वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट्स और नॉट. हेंस यू कैन टू सम एक्सटेंट रिलाई अपॉन दैट. और क्या हो सकता है, और सोचिए क्या हो सकता है. एक पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ फ्यूचर, कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में किसी ने आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल्स को लेके कोई केस दर्ज किया, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन हेल्प इन सेटलिंग दोस ट्रेड डिस्प्यूट्स. कोई भी लेबर यूनियंस के साथ कंपनी का डिस्प्यूट हो जाता है, मैनेजमेंट का हो जाता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉइज है या जो लेबरर्स है, उन्होंने कहा कि हमारी वेजेस और सैलरीज टाइम पे नहीं मिली, हमें बोनस नहीं मिला, इंसेंटिव्स नहीं मिले, कुछ भी ऐसा केस अगर हो, तो कोर्ट जो है वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ज्यादा रिलाई करेगी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मुझे बताओ. हम ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन का जो है पप्पा लगा हुआ है, एक स्टैंप लगा हुआ है इंडिपेंडेंट. So it helps in settling trade liabilities. It helps in settling your labor disputes also. It also helps in settlement of taxes. जैसे अगर आप जब income tax returns पढ़ोगे, there we have to annex the audit
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने जो है अनेक्स करनी पड़ती है इन केस ऑफ कंपनीज. सो इट हेल्प्स इन सेटलिंग योर ट्रेड टैक्स लायबिलिटीज आल्सो. अगर कोई असेसमेंट कल को आपके ऊपर हो गया, तो असेसमेंट वगैरह क्या होती है ये डीटी में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ो. असेसमेंट यानी कि हो गया आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए था, उसकी बेसिकली वेरिफिकेशन होती है. सो अगर असेसमेंट कभी होता है तो आपकी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर कंसिडर्ड मोर रिलायबल. और क्या हो सकते हैं, कल को कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, लिक्विडेशन नाम का चैप्टर आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना, तो असेट्स को कैसे रियलाइज करना है, कौन सी वैल्यू पे सेल ऑफ करना है, ये एक्यूरेट या फिर एक मोर रिलायबल पिक्चर कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगी, अनऑडिटेड की ऑडिटेड, ऑफ कोर्स नॉन ऑडिटेड. So it helps in settlement of the accounts also in case of liquidation, in case of dissolution अगर partnership का केस है. So there are a lot of advantages of audit. एक एक करके देखते हैं हम. सबसे पहले हो गया safeguards the financial interest of persons not associated with the management. मैंने बताई थी आपको, it safeguards the financial interest of persons who are not associated with the management. यहाँ पे आप example लिख सकते हैं. Example क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, गवर्नमेंट लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हो गई. ऐसे जो लोग जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में बट दे आर नॉट इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाता है. सेकंड पॉइंट इज इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज. आपके कंपनी के अकाउंट्स कौन बनाते हैं, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करता होगा, अकाउंटेंट बनाते हैं. और अकाउंटेंट अगर बड़ी कंपनी है तो एक अकाउंटेंट होगा कि काफी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे अकाउंट्स टीम में, बहुत सारे लोग. नाउ whether they are performing their duties properly or not, ये लोग अंदर में कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं कि क्या एमडी आके मैनेजिंग डायरेक्टर आके रोज चेक लगाएंगे, नहीं. बट अगर ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं तो सारे एम्प्लॉइज के मन में एक डर कह सकते हो आप, या एक शंका रहेगी हमेशा कि अगर हमने कुछ गलत किया तो देयर इज दिस वन इंडिपेंडेंट पर्सन हु कैन कम एंड चेक अपॉन अस. ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन है ये काफी प्रोफेशनल बंदा है, मींस सीए है, ये आके हमारी जो गलती है वो पकड़ सकते हैं और अगर हम फंस गए तो हम तो फायर भी हो सकते हैं, राइट. सो इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज are actually prevented from performing any kind of fraud or misappropriation of any kind. Okay, so acts as a moral check on employees, helpful in settling liability for taxes, useful for settling trade disputes. जैसे मैंने बताया creditors के साथ आपकी कोई dispute हो गई, कोई debtor के साथ dispute हो गई, किसी ने case file कर दिया आपके against court में, so it helps in settling those kind of trade disputes. Helps in detection of wastages and losses. So if an independent person is coming and checking upon your accounts, तो अननेसेसरी क्या क्या वेस्टेज हो रही है कंपनी में, क्या ऐसे खर्चे जो नहीं होने चाहिए, कोई एक नॉर्मल लॉस का लेवल होता है, ऐसा तो नहीं बहुत अब नॉर्मल लॉसेस होते हैं कंपनी में, ये सब डिटेक्ट हो सकता है अगर ऑडिट होगी तो. प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी असर्टेन हो जाएगा. जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए कंपनी में वो कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो रिकॉर्ड्स वैसे मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Ascertains whether necessary books of accounts and allied मतलब associated records have been properly kept or not. Then it reviews the existence and operation of various controls. जो controls management के बनाए थे, डिजाइन किए थे, और वो एक्चुअल में कंपनी के अंदर लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा. So it is helpful in reviewing the existence, नंबर 1 की कंट्रोल जहां होना चाहिए वहां पे है या नहीं है. सेकेंडली ऑपरेशन, जो कंट्रोल बनाया गया वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मास्टर लिस्ट ऑफ सेल प्राइसेस मेंटेन हो रही है बट एनीवन इज कमिंग एंड ऑल्टरिंग दैट मास्टर लिस्ट, सो इज द कंट्रोल ऑपरेटिंग. सो अगर ऑडिट होगी तो ये सारी जो वीकनेसेस है ये निकल के बाहर आएंगे, आइडेंटिफाई होगी, हाईलाइट. गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स एट टाइम्स. मैंने एक एग्जांपल दिया, जब हम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ऐसी कई सारी जगह पे आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट भी आपसे मांग सकती है. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या हो गया, इन केस ऑफ
लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारे जो केसेस हैं यहाँ पे आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ज्यादा रिलायंस प्लेस किया जाता है, ज्यादा उन पे भरोसा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। यू कैन जस्ट राइट दिस। अभी हम आके एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट एंड योर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, एकदम सिंपल है। जैसा आपने ऊपर पढ़ा था वो सेम चीज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थोड़ी डिटेल में प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेट जैसा आपको एग्जाम में लिखना होगा उस तरह से दिया हुआ है। So let's come to aspects to be covered in audit in the question answer section. GST and Company, a firm of chartered accountants. मैं read कर रही हूँ question. GST and Company, a firm of chartered accountants, has been appointed to audit the accounts of XYZ Limited. The partner wanted to cover the principal aspects while conducting its audit of financial statements. Advise those principal aspects. तो ये question RTP में 2018 का है. Principal aspects क्या क्या हैं? Examination of the system of accounting and internal control to ascertain whether it is appropriate for the business and helps in properly recording all transactions or not. जो internal control का system है, whether it is appropriate for our business or not, and whether it is helping in recording all the transactions in the correct manner or not. Reviewing the system and procedures to find out whether they are accurate and comprehensive, and incidentally whether material inadequacies and weaknesses exist to allow frauds and errors going unnoticed. मतलब जो internal controls बनाए गए हैं, whatever accounting controls are present, उनमें कुछ inadequacy या फिर कुछ weakness है क्या? जैसे master list of prices कोई भी आके alter कर रहा है, there is no requirement only to gain access to alter the master list. So internal control is not operating efficiently. That means there is inadequacy or weakness existing in the system. Checking the arithmetical accuracy of the books of accounts. Arithmetical accuracy मतलब जो amount की invoice थी, say for example purchase की एक invoice थी 1 लाख रुपीस की, तो purchase has been recorded at 1 लाख रुपीस only, 1 लाख 1000 पे नहीं रिकॉर्ड हुआ, ये हो गया arithmetical accuracy. Accurately रिकॉर्ड हुआ या नहीं, जितना था उतना ही हुआ या नहीं हुआ. So check the arithmetical accuracy. Then verification of the authenticity, validity of transactions entered into by making an examination. अब कैसे check करेगा auditor authenticity and validity of transactions को? By making examination of the entries in the books of accounts with relevant supporting documents. Remember ये मैंने आपको बताया था कि जो books of accounts होते हैं, जो आपकी entries हो गई, वो किसके basis पे पास की जाती है? आपके केस में तो जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, बट कंपनी को क्या कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये एंट्रीज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो? नहीं. कंपनी के केस में क्या होता है? एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होती है, इवेंट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन के रूप में बदल जाती है और उन ट्रांजैक्शंस को फिर रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम सपोर्टिंग एविडेंसेस. तो आप ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी को कैसे चेक करोगे? यू विल चेक ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा फुल सेंटेंस के साथ लिखना है, बट टू लर्न द पॉइंट्स कि क्या क्या पॉइंट्स थे ये आप चार्ट से लर्न. ठीक है. Ascertaining that a proper distinction has been made between items of capital and revenue nature, and that amounts of various items of income expenditure adjusted in the accounts corresponding to the accounting period. यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें डिफरेंशिएट किया गया है. जो भी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है वो आपने कैपिटलाइज किया है, और जो रेकरिंग नेचर का है उसको आपने रेवेन्यू अकाउंट में यानी कि पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया है. कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. जो पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको, कंपैरिजन ऑफ द एफएस विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. देन वेरिफिकेशन ऑफ द टाइटल एक्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, verification of liabilities, checking the results shown by the PL and to see whether results shown are true and fair or not. Where audit is of a corporate body confirming that the statutory requirements have been complied with. ये भी एक important aspect है कि statutory requirements जो भी है, जो भी law की requirements होती है, वो comply हुई या नहीं हुई. This also the auditor has to check. Reporting to the appropriate person or body whether the statements of account have whether the statements of accounts examined, and in case you have examined the statements, you have to report to the appropriate person or body.
ये वेदर नहीं होगा, यहाँ पे आप वेयर लिख लो। रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी वेयर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एग्जामिन्ड। एक्चुअली वेदर इसलिए लिखा गया है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया या नहीं किया, बट ऑब्वियसली आपने किया है, इसीलिए ऑडिट हुई है उसकी, राइट? सो यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट ऑन द ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The chief utility of audit lies in reliable financial statements on the basis of which the state of affairs may be easy to understand. Apart from this obvious utility, there are other advantages of audit. Some or all of these are of considerable value even to those enterprises and organizations where audit is not compulsory. तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप कंसर्न्स हो गए, इनमें ऑडिट कंपलसरी नहीं होती है। कंपनीज के केस में तो कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है सच, तो उनके ऊपर कोई ऑडिट का कंपल्शन नहीं है। बट स्टिल सिंस देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, इवन फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके लिए ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, वो भी ऑडिट करवाते हैं बिकॉज ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऐसे आप एडवांटेजेस बताइए। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में कहीं भी सीधा सीधा नहीं बोला कि राइट द एडवांटेजेस। दिस इज नॉट योर क्लास 11 एंड 12, राइट? तो आपको एक सिचुएशन दी, एक कुछ आपको सर्कमस्टांस बताया कि ऐसा ऐसा होता है, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उसके अलावा और भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो इनडायरेक्टली आपको पूछा जा रहा है कि वेयर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। सो नाउ यू आर ग्रोन अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देने का रीजन यही था कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के समझ तो आना चाहिए ना इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बोला गया दैट देयर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। नाउ देख लीजिए, आपको जो जो मैंने ऊपर बताया था चार्ट में एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। safeguards the financial interest of persons who are not associated with management, whether they are partners, shareholders, bankers, FI मतलब हो गया financial institution, or the public at large. Then it acts as a moral check on the employees from committing defalcations or embezzlement. Defalcation मतलब क्या हो गया? चोरी, theft. Helpful in settling liability for taxes and negotiating loans and for determining purchase consideration. So you have studied internal reconstruction in accounts. नेटो माइनस पीसी या मर्जर अमालगमेशन आपने पढ़ा है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो उसके केस में जो नेटो माइनस पीसी होता है, परचेज कंसिडरेशन, वो कहाँ से डिटरमिन होता है? तो आप बैलेंस शीट से कंप्यूट करके लाते हो ना जब अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन आता है। तो अब समझिए वो अकाउंट्स जो है वो ऑडिटेड है, उनके ऊपर ज्यादा रिलायंस आएगी, और अगर अनऑडिटेड है उनके ऊपर कम रिलायंस होगी, कम उनके ऊपर भरोसा किया जाएगा। सो हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द परचेज कंसिडरेशन ऑल्सो. It is useful for helping for settling the trade disputes for higher wages or bonus, as well as claims in respect of damage suffered by property by fire or some other calamity. जैसे समझिए कि कंपनी में आग लग गई या फैक्ट्री में आग लग गई, तो आपका बहुत सारा इन्वेंट्री का लॉस हो गया। नाउ आप क्या करोगे? आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। आपकी इंश्योरेंस अगर कराई गई फायर इंश्योरेंस, यू विल क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योरेंस कंपनी कितने का इंश्योरेंस क्लेम देगा आपको? देखिए आपकी इन्वेंट्री का नुकसान हो, जितना उनका मार्जिन है उसको जितने की इन्वेंट्री का नुकसान हो, अकॉर्डिंगली आपको क्लेम दिया जाएगा, रिइंबर्स किया जाएगा। अब वो कितने की इन्वेंट्री थी वो कैसे पता चलेगा? इन्वेंट्री तो राख हो गई। अब तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर रिलाई ज्यादा कर सकती है। तो इट ऑल कम्स टू रिलायंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी। अब उस रिलायंस को कहाँ का यूज किया जा सकता है? जैसे फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, या फिर इंश्योरेंस क्लेम्स का सेटलमेंट हो गया। हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस, ascertains whether the books of accounts and allied records have been properly kept. It also acts as an appraisal function. Audit reviews the existence and operations of various controls. Helps in the settlement of accounts at the time of admission or death of a partner. Admission death भी हो सकता है, liquidation dissolution भी हो सकता है। तो accounts को settle करने में audited financial statements more reliable. Government may require audited and certified statement before it gives assistance. अगर आपको गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी चाहिए, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई लाइसेंस ही चाहिए, तो ट्रेड लाइसेंस आपको चाहिए, तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड अगर है तो गवर्नमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे मांगती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट।
अब जहाँ एडवांटेजेस होते हैं उसके साथ में बच्चों क्या आता है, साथ में हैंड इन हैंड चलता है, दो चीज साथ में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आप अपना कॉमर्स में पढ़ते ही आए हो ना क्लास 11 12 में। सो नाउ वी विल स्टडी द disadvantages rather the inherent limitations of audit। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसे 200 में inherent limitations of audit भी एक टॉपिक है, that is this inherent limitations of audit।